A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, after completing your pre-board examination 2, let's we move to the revision part of your whole syllabus in 10 parts. As you know very well, your revision test 3 will be started from the 7 January 2021. In the third revision test, you can see that in the timetable your whole syllabus divided into the 10 parts, and each and every chapters asked in the different papers. So you know very well, if we are talking about the accountancy syllabus, so accountancy syllabus also divided into the 10 parts, and the first part uh, which will know as the first paper of the accountancy RT3, which are depend on the focus on the part P, chapter 1 and 2, that is an financial statement of company and the analysis of the financial statement, as well as the tools for financial statement analysis. So in this video, we will discuss the first and very important chapter of part B, that is an financial statement of company. As you know very well, if we are talking about the class 11th scenario, so you know very well, when we are talking about the sole proprietorship, so sole proprietorship prepares the two important statement to determine, if you are talking about the sole proprietorship, so sole proprietorship prepared the two statement to determine its profitability and position of the business. You know very well, at the end of the accounting year, every concern, whether it is related to sole proprietorship, whether it is related to the joint into family company, or any kind of the other forms of the business organization, at the end of the particular year, they want to decide, they want to estimate their profitability and position of the business. So if you are talking about the profitability, so you know very well, profitability, and with the help of the profitability statement, sole proprietorship predict its ability to earn profit, and for this purpose, sole proprietor prepared firstly the trading account, and secondly it prepared the profit and loss account. And if you are talking about the positional statement, so sole proprietor estimates and determine its the position of the business by preparing the balance sheet of the concern. So you can see that सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. सो what are the aim of the preparing the trading account? You know very well, with the help of the trading account we calculate the gross profit of the business, and with the help of the PL account we calculate the net profit or net loss of the business, as well as if we are talking about the balance sheet, so with the help of the balance sheet, sole proprietorship estimate and calculate the assets, liabilities and the capital at the end of the accounting year. But when we are talking about the Companies Act 2013, because you know very well, sole proprietor के साथ कोई एक्ट जुड़ा नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इसी तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस या फिर पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कई लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इफेक्ट करता है, ये भी कह सकते हैं. सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज रिलेटेड टू द कंपनी, एक एक्ट बनाया गया, दैट इज एन कंपनीज एक्ट 2013. बिकॉज यू नो वेरी वेल, कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है और इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस बड़े लेवल पे लोगों को इफेक्ट करता है, और उसी के हिसाब से कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है. क्योंकि अगर कोई भी कंपनी सही ढंग से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करती या प्रिपेयर नहीं करती, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी, या कह सकते हो पूरा का पूरा इफेक्ट जो है, लॉस जो है, वो इंटरेस्टेड पार्टीज को बियर करना पड़ता है.
सो दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म किया गया। ये इसलिए फॉर्म किया गया ताकि कंपनी अपना साल भर का जो भी प्रॉफिट कमा रही है या उसका एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी पोजीशन है वो पोजीशन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर सेंस का मतलब ये है कि अगर कंपनीज कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का तो कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। उसकी जो रिलेटेड पार्टीज हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, वो सब बहुत ही डेडिकेटिवली इन द टर्म्स ऑफ मनी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में वो क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। बट कंपनी अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो वर्क क्यों नहीं कर रही है, उसके क्या रीजंस हैं, इसको फाइंड आउट करना और करेक्ट डेविएशन कैलकुलेट करने के साथ साथ ये भी पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है। सो अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए बना ताकि कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू लोगों तक पहुंच सके, ट्रू एंड फेयर व्यू लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट every company must have to present their profitability statement and income and position statement at the end of the year। ये दोनों स्टेटमेंट उसे एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रेजेंट करना जरूरी होता है। यानी कि जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एवरी कंपनी must have to present the statement of profitability and a statement of the position at the end of the particular accounting year, and this accounting year generally end on the 31st March, okay, and started from 1st April, but in the exceptional cases if new business we will start, तो in this situation में हमारा जो accounting year है वो change हो जाता है, वो बात की बात है। तो profitability statement की अगर हम बात करें तो कंपनी अपनी profitability calculate करने के लिए कौन सा statement बनाती है, that is a statement of प्रॉफिट एंड लॉस। और पोजिशनल स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी मस्ट हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी and a statement of the position at the end of the accounting year, which include the two important statement, that is a statement of profit and loss and the balance sheet. If you are talking about the format, so this format is given as per the accordance of the provisions of Companies Act 2013 very carefully। ये बहुत ही केयरफुली गिवन है आपकी बुक में भी कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है। तो उसका एक रफली फॉर्मेट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द format of the statement of profit and loss, क्योंकि इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद we will move on the very important topic, that is an format of statement of profit and loss। so अगर हम फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट ऑफ statement of profit and loss, अगर इसकी बात करें सो दिस इज एन फॉर्मेट। इसका अगर हम रफली फॉर्मेट पहले ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर सेकंड मेन हेड होता है अदर इनकम, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके बनता है दैट इज एन टोटल रेवेन्यू। ओके ओके, सो दिस विल बी नोन एज एन टोटल रेवेन्यू। ओके, द फोर्थ वन इज एन एक्सपेंसेस। ओके, सो फर्स्ट head of the statement of the profit and loss account, that is in revenue from operation। And what is revenue from operation? Revenue from operation means the sales minus sales return। second is the other income, जब first and second को हम add कर देते हैं तो it will be known as a total revenue।
उसमें से फोर्थ एक्सपेंस। एक्सपेंस में कई सारे हेड्स होते हैं। एक्सपेंस में क्या होते हैं, कई सारे हेड्स होते हैं, जैसे कि सब हेड्स हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एज वेल एज चेंज इन इन्वेंट्री, okay, change in inventories, as well as employee benefit expense, employee benefit expense, or depreciation and amortization expense। ठीक, और हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। ठीक है, इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। एंड टोटल एक्सपेंस मींस द टोटल ऑफ फोर्थ। और उसके बाद यू नो वेरी वेल द फिफ्थ वन इज अ टैक्स। द फिफ्थ वन इज अ टैक्स, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज एन टोटल रेवेन्यू थर्ड माइनस टोटल एक्सपेंस। So third minus fourth will be known as an profit before tax, और उसमें से फिर हम टैक्स माइनस कर देते हैं, so it will be known as the profit after tax. Okay, so this is a format of the statement of profit and loss. Let's we move to the practical question by which we understand the concept how we will prepare the profit and loss statement of the companies, because most of the examination, मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर यू कैन सी दैट कि जब भी कोई क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने को आएगा या कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने को आएगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्टली। क्योंकि अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही प्रिपेयर करने नहीं आएगा, सो क्या आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए बोर्ड क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर एक छोटे से छोटे टॉपिक्स को हम लोग को अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है। ओके, सो ये पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को पहले से अच्छे से लर्न कर लो कि विदाउट फॉर्मेट यू कैन नॉट प्रिपेयर दी कंपैरेटिव या और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सो ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी के बेसिस पे हम लोग बनाना क्या सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या आता है, इसी के बेसिस पे क्या आएगा, एक आ सकता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है, और दूसरा आ सकता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इन दोनों चीजों पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन द फॉर्मेट इन योर कॉपी प्रॉपरली। Okay, so let's we move to the preparation of the common size of statement of profit and loss. So the information is revenue from operation 10 lakh, 12 lakh, 50,000, depreciation and amortization is 20, 30,000, changes in inventory 30 and 20,000 negative, as well as other expenses 7 lakh 20,000 and 8 lakh 70,000, tax 50,000 and 50,000. So first of all, we prepared the format of the common size statement of PL, and the format is particulars note number। नोट नंबर इसलिए जरूरी होता है कि हो सकता है किसी कॉलम में किसी चीजों में क्या हो सकता है, आपका एक से ज्यादा वैल्यू हो, एंड दिस इज एन टू कॉलम, द फर्स्ट कॉलम which are related to the absolute amount and second column is related to the percentage of revenue from operation. So this is a common size statement of profit and loss, and the format is particulars, second column is absolute amounts, third column is change in not percentage of revenue from operation, the third column,
percentage of revenue from operation, and two other values. And absolute values is given for the 2 years 2019 and 2020. So let's we put down the first value, that is in revenue from operation, which is also known as the revenue from operation, which is also known as the net sales, and the value is 10 lakh, 12 lakh. The second value is 12 lakh 50,000. Sorry for that. The second value is expenses, because other income is not given. So other income कुछ भी नहीं है. And the total revenue is third. Total revenue is 10 lakh and 12 lakh 50,000. Okay. Now fourth one is an expense, and with the help of the given information, we can say that the different expenses are given in the portion, that is in purchase of stock in trade, purchase of stock in trade will be a 720, 870, and change in inventories will be a 30,000 and 20,000 negative, and depreciation and amortization will be 20,000 and 30,000. Next, other expense is 30,000 and 50,000. Other expense is a 30,000 and 50,000. Okay. So now हम सारे expenses को add कर देते हैं, and the next column is total expenses. Total expenses is a 4. So 720 plus 30, 750, and 50 is a 8 lakh. And 870, 9 lakh, 950, and 20 minus is 930. And it is called profit before tax. And how we will calculate a profit before tax? Third minus 4. Third is 10 lakh and fourth is 8 lakh. So you can see that how we will prepare the common statement of PL. So the 10 lakh is our total revenue, 8 lakh is a total expense, so profit before tax is 2 lakh. If you are talking about the year 2020, 12 lakh 50,000 minus 930, so the profit before tax will be a 293, 3 lakh 20,000. So profit before tax for 2019 is 2 lakh and for 2020 is 3 lakh 20,000. And according to the quotient, the tax is given for 50,000 and 50,000 for each year. So less tax will be of 50,000 and 50,000. Now your profit after tax will be a 1,50,000 and 2,70,000 for this year. So this is a format of the statement of PL जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. Now we are discussing the common size. This is a statement of profit and loss. क्योंकि आपने देखा बिना statement of profit and loss के knowledge के we cannot prepare the common size statement of PL. So आपने पहले statement of profit and loss prepare किया, उसके बाद आप क्या prepare करोगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ फेयर. और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ फेयर में नाम वर्ड क्या है? कॉमन. इसमें कॉमन क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर will be taken as 0. It will be taken as 100.
now this will also 100. If you are talking about the purchase of stock, तो purchase of stock का percentage कैसे calculate करेंगे? 7,20,000 divided by 10 lakh into 100, so that's why it will be a 72%. And for the 2020, 8,70,000 divided by 12,50,000 into 100, that is an 69.6760. उसी तरह से सिमिलरली 30,000 divided by 3 lakh divided by 10 lakh, that's an 3%, and 20,000 divided by 12,50,000, it will be known as an 1.60. But it is a minus figure. Why? Because 20,000 given in this question as a minus figure. Next is 20,000 divided by 10 lakh into 100 is 2.00. 30,000 divided by 10 lakh is 3.00. 8 lakh divided by 10 lakh into is an 80.22. अगर आप ऐड करो 72 plus 75, 75, 77 and 380. 2 lakh divided by 10 lakh is 20.200. 50,000 divided by 10 lakh is a 5.00, and 15 lakh divided by 1,50,000 divided by 10 lakh is a 15.00. So you can see that 20 minus 5 equals to 50. अब अगर हम 2020 का कैलकुलेट करें, so 30,000 divided by 12,50,000 into 100 is 2.40, and 3 divided by 50,000 divided by 50,000 को अगर आप डिवाइड करो 1250000, so 4040 5 1/5. So 1/5 means is 1/5 means that is an it will be multiplied by 100 divided by 5, that is 25. So the right answer is 50 divided by 1,25,000, 12,50,000. So it will be a 4.00. ओके, अगर आप चीजों को बहुत ही केयरफुली मेजर करेंगे, so we can see that, and this will be 74.40. How? 9,30,000 divided by 12,50,000 into 100, that is 74.40. Profit before tax is 3,20,000 divided by 12,50,000, so that is in 25.60. And 50,000 divided by 12,500, that is in 3.00 in minus figure. कुछ चीजों की निकालने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट, सॉरी, क्योंकि जब कोई वैल्यू सिमिलर होगी तो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट या करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, जैसे 50 एंड 50, तो 50 का एक बार अगर आपने निकाल लिया 4, तो इस वाले 50 का भी क्या आएगा, 4 ही आएगा. तो बार बार आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और लास्ट है 2,70,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, that is in 21.60. So this will be the common size statement of PL of this question. Okay, so you can see that firstly we prepared the common size statement of PL of this question. Firstly we prepared the column that is in particulars, absolute amount, percentage of RFO. 2019 एंड 20 जो एब्सोल्यूट अमाउंट है उसमें एक्चुअल वैल्यू को हम लोगों ने प्लेस किया. फिर 2019 एंड 20 में परसेंटेज कैलकुलेट किया और द ऑफ आरएफओ. वाई? बिकॉज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कॉमन क्या होता है, आरएफओ कॉमन होता है. तो सारी वैल्यूज को हमने डिवाइड किससे किया है, 2019 की जो वैल्यूज है उसको डिवाइड किससे किया है हम लोगों ने, इससे, सारी वैल्यूज को. ठीक, ऑल द वैल्यूज will be divided by the 10 lakh. Similarly हम लोगों ने करंट ईयर की जो इतनी भी वैल्यूज गिवन है उसको किससे डिवाइड किया है, इससे डिवाइड किया 12,50,000, और एक्चुअली वैल्यूज में जाकर वैल्यूज को गिवन कर दिया है. ऐसे ही बनता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल. बट अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बाद अगर हम लोग फोकस करें अगर हम लोग किस पे, कंपैरेटिव पे, तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता.
क्या डिफरेंसेस नहीं होते कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव में? डिफरेंसेस ये नहीं होते कि फॉर्मेट विल बी सेम, कुछ चीजें बट डिफरेंट हो जाती हैं। ये जो दो कॉलम है यहां से गायब करना पड़ता है। अगर वैल्यू सेम हो तो सॉल्यूशन लगभग सेम होगा, आधा काम आपका सेम है, जैसे आपने किया है एज इट इज आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ये है आपका। अब इसी सेम चीजों को हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे, जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज। एक हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर की वैल्यू, फिर उसके बाद हम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंज। अगर हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए ये बी है और ये कॉलम ए है, तो बी में से पहले ए की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज ऑन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यस ऑन प्रीवियस ईयर। उसे हम लोग बोलते हैं, जो ये सी कॉलम आया एब्सोल्यूट चेंज, C will be divided by A into 100. So इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो 10 लाख और 12,50,000 का डिफरेंस कितना है? 2,50,000। एंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख into 100, दैट इज एन 25%। परसेंटेज नहीं लिखते, जैसे आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर पॉइंट है तो पॉइंट करके लिखना पड़ता है। उसी तरह से इसके बाद वाला जो कॉलम दिया हुआ है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, उसी तरह सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज कितना आएगा? 7,20,000 प्लस ये, तो ये आएगा 150, 30 एंड 20, ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। कितना चेंज हो रहा है? करंट ईयर 20 माइनस 30। देखो यहाँ ध्यान से देखना, चेंज इन इन्वेंटरी पहले 30 थी, अब कितनी हो गई? 20। तो 20 ऑलरेडी माइनस में है, उसमें से अगर आप माइनस करोगे 30 तो हो जाएगा -50। ये चीजें ध्यान रखनी है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो 10,000, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे 20,000। ऐसे आपको डिफरेंसेस निकालने। इन दोनों का डिफरेंस 1,20,000, इन दोनों का डिफरेंस 1,20,000, इन दोनों का डिफरेंस 0, और लास्ट का डिफरेंस है 1,20,000। उसके बाद जब लास्ट आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कैसे निकालना है? 1,50,000 डिवाइड बाई 720। मैं बता दे रहा हूँ, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100। 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100। 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। लास्ट 1,30,000 8 लाख इंटू 100। 120 डिवाइडेड बाई 2 लाख 200। लास्ट में तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि चेंज ही नहीं है। फिर 120 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, and each and every values will be given clearly in the solution of your question. क्लियर हुआ बात समझ में? कैसे करना है चीजों को और उसका आंसर आपको निकाल लेना है। So in your upcoming examination, you know very well, you have to prepare the sufficient knowledge, you have to practice the sufficient question related to this topic, that is an comparative and common size statement of PL। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही सारी चीजें डिस्कस की, क्योंकि जो आने वाला आपका पहला रिवीजन टेस्ट है of first paper of the revision test 3 of the subject that is an accountancy, उसमें आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने हैं ऑफ द पार्ट बी ऑफ द चैप्टर नंबर 1, 2 and 3, that is an financial statement of company, analysis of financial statement, और हम लोग को डिस्कस करना है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज के इस वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल।
कल के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, और उसके बाद के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज इन रिलेटेड टू द हेड सब हेड ऑफ द डिफरेंट आइटम गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कुछ आइटम्स रहेंगे, उसका हेड और सब हेड रिकॉग्नाइज करना होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द short answer type question which are related to the chapter number 1 of part B, that is in financial statement of company की horizontal फॉर्म क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, यूजर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेट क्या है, किस सेक्शन में बनता है। तो जो छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के अंदर पार्ट बी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा यहाँ पर। तो आप दोनों ही फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फॉर्मेट बनाने में प्रॉब्लम आती है। ओके, सो टेक केयर। आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।